Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video we are going to learn about unbounded knapsack. Okay, so this complete playlist that is dynamic programming, अभी तक हमने दो वीडियोस knapsack के ऊपर देख लिए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसमें knapsack के जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं सब चीज हमने जान ली, और ये प्रोबेबली लास्ट वीडियो है knapsack पे, ठीक है, जिसपे हम अनबाउंडेड knapsack, यू कैन से लास्ट फॉर्म ऑफ knapsack प्रॉब्लम देखने वाले हैं, और उसका लीनियर स्पेस फॉर्म भी देखने वाले हैं, लाइक ओ ऑफ डब्ल्यू पे हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स जस्ट सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल। So basically Newton School is an e-learning platform which we all know, and they provide you different services. Like first service they provide you is pay after placement program. So it is kind of a learning training in which they will train you for 6 months, complete 6 months, and they will make you a full stack developer, and by teaching you front end development, back end development, and all the required things. Okay, and not only this, after that they will also get you placed in different companies like ThoughtWorks, Topper, 7-Eleven, Deloitte. So they have tie up with almost 300 companies of India. So firstly they will train you for 6 months, they will make you a full stack developer, and then they will also get you placed. Okay, what is the most amazing thing about this is that they have a pay after placement program or pay after placement structure, in which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, and minimum CTC which they try to provide you is 5 lakh, so it is also a good thing. And if you want to know more about this program, you can just come to newtonschool.co and check their pay after placement program. Second thing they have for you is Launchpad initiative. Okay, so if you are confused or if you want to learn things but you are not getting any platform from where you can start, you can just head towards newtonschool.co Launchpad, sign up for free, and you can have different courses for free, absolutely for free. Okay, so they have different courses for every computer science tech, from core subjects to every technology. Okay, like front end, back end, frameworks and programming, different languages, everything is there for free. You can just come here, sign up, and start taking any course for free. And you can also solve quizzes after learning, and you can also use Newton School IDE for coding purpose, and these all things are completely free for you. So just come and check their courses. Third and most amazing thing they have for you is Newton School MS degree program. Okay, master's degree in computer science. So if you are a working professional or anyone who wants to pursue their master's degree from abroad, but due to any circumstances or reasons you can't go to abroad to practice your master's degree in computer science, you can just head towards Newton School master's degree program, in which they have tie up with MIA Digital University of Spain. Okay, so they will train you for complete 1 month. Your university will train you for complete 1 month, that is MIA Digital University, and after that you will get your degree which will be applicable in India as well as in abroad. Okay, on the basis of which you can get good jobs in product based companies or anywhere you want. Okay, so if you want to know more about this master's degree program, then just go to the link in description, that is bit.ly hitesh15, and you can also download Bronche, or you can apply now for free, and you will get a call from expertise and they will explain you everything about this. Okay, at last, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this channel. I am posting videos regularly, updating playlists regularly. Like you have different playlists for dynamic programming from scratch, okay, where I am going to teach you everything, every standard question from dynamic programming. Second, you also have data structures and algorithms, where I have taught you every data structure in computer science. Okay, almost every important data structure. And you also have C++ tutorials, where you can just start by learning any programming language, and you will also get advanced things in this playlist. Okay, so now let's just start with today's video, and that is unbounded knapsack. तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ अनबाउंडेड knapsack होती क्या है, ठीक है, बट लेट मी जस्ट टेल यू अगेन. knapsack प्रॉब्लम होती क्या थी हमारी, जिसमें हमें एक बैग दिया जाता था, ठीक है, उस बैग की कुछ एक मैक्सिमम लिमिट होती थी, यू कैन से लिमिट, और यू कैन से कैपेसिटी. ओके, कैपिटल W कुछ भी हो सकती है, ठीक है. फिर हमारे पास कुछ आइटम्स होते थे, ठीक है,
और आइटम्स में हमें वेट दिया जाता था और वैल्यू दी जाती थी, और हमें ऐसा कहा जाता था कि इस बैग में ये आइटम्स पुट करो सच दैट जो मैक्सिमम सम अप वैल्यू होगी इन आइटम्स की, जितने भी तुमने इस बैग में डाल दिए, उसको तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ओके, सो हम इस पे डीपी क्यों लगाते थे ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, बिकॉज हर आइटम के पास, हर आइटम के लिए, फॉर every single item we have a choice that we can put this item in our bag or knapsack or jhola, whichever you want to call it, okay. That for every individual item we have a choice, either we can put it into the knapsack or we cannot, okay, and we have to maximize something, ठीक है। so by choice we are maximizing something, so that's why we have to assume every पॉसिबिलिटी, ठीक है, और उसको अज्यूम करने के बाद सारी पॉसिबिलिटीज हम अपना आंसर निकालते थे, ओके। दैट्स वाई उस केस में हम डीपी यूज करते थे, ठीक है, फाइन। अब दो टाइप के नैपसैक्स डीपी में हमने देख लिए थे, दैट इज फर्स्ट वाज 01, ठीक है। 01 में क्या होता, तो ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा जस्ट गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड चेक एवरीथिंग अबाउट 01 नैपसैक। इस वीडियो में हम अनबाउंडेड नैपसैक के बारे में बात करने वाले हैं। तो 01 आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, दैट इज प्री रिक्विजिट, तो जस्ट जाओ, अगर नहीं पता तो जाके देख के आओ। नाउ व्हाट इज अनबाउंडेड नैपसैक? अनबाउंडेड नैपसैक में सिंपली मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी तुम्हारी कैपेसिटी में कोई लिमिट नहीं होती। आइटम्स की कैपेसिटी और यू कैन से आइटम्स की फ्रीक्वेंसी, कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स तुम इसमें सेम टाइप के पुट कर सकते हो, ठीक है। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम है, each item I will be available infinite times, and that's why this type of knapsack problem is called unbounded। इसमें कोई बाउंड नहीं है आइटम की अवेलेबिलिटी पे, ठीक है, फाइन। तो अब अगर हम फर्स्ट चीज देखें कि 01 नैपसैक और उसमें इस अनबाउंडेड नैपसैक में डिफरेंस क्या है, और उसी से बस हमारा सॉल्यूशन बनता चला जाएगा, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 01 नैपसैक में क्या होता था, अगर आपको याद है तो होता क्या था, कोई भी आइटम हम यूज करते थे, ठीक है, हर आइटम को हम कंसीडर करने के बाद हम हर आइटम को कंसीडर करते थे कि हम इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं या फिर एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ आई, हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड। फिर इंक्लूड में हम क्या दो पॉसिबिलिटी और लेते थे, दैट इज कि हम इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी हम वी आर एक्चुअली इंक्लूडिंग दिस एलिमेंट इन अवर नैपसैक और वी आर नॉट इंक्लूडिंग दिस एलिमेंट इन अवर नैपसैक, ठीक है। ये हमारा कुछ डिसीजन ट्री बनता था, यू कैन से, फॉर नैपसैक, और हम हर इंडिविजुअल आइटम के लिए ये करते थे। आफ्टर एक इंडिविजुअल आइटम को कंसीडर करने के बाद हम करते क्या थे, जो हमारा नैपसैक का मतलब जो आइटम्स थे, ठीक है, आइटम्स की एक एरे थी ना हमारे पास, आइटम्स की एक एरे थी जिसका कुछ साइज n हुआ करता था, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। हमने सपोज इस वाले आइटम को कंसीडर कर लिया, दैट इज ith इंडेक्स, तो हम करते क्या थे, अब अपने साइज को डिक्रीज कर देते थे बाय 1, बिकॉज अब हमें इस आइटम की जरूरत नहीं है, हमने इसको कंसीडर कर लिया, और इस आइटम की वजह से जो जो हमारे आंसर में मैक्सिमम वैल्यू में चेंज हो सकते थे वो सब हमने पॉसिबिलिटी ऑलरेडी अपनी डीपी एरे में अपडेट कर दी, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम अपना साइज अपडेट कर देते थे बाय साइज इज इक्वल्स टू साइज -1, है ना। बट अनबाउंडेड नैपसैक में यहीं पर आपका चेंज आ जाता है, और बहुत छोटा सा चेंज है, ठीक है। अनबाउंडेड नैपसैक, सपोज हमने किसी आइटम को, आइटम ऑफ आई, हमने उसको कंसीडर किया, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया, हमने एक्सक्लूड कर दिया, तब तो हमारा उसका कुछ काम ही नहीं है, खत्म, उस एलिमेंट की बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है। अगर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे आते हैं। इंक्लूड करने के बाद हम क्या करते थे, हम यहां पे जब आते थे, हम इंक्लूड कर रहे हैं किसी आइटम को, ठीक है, तो हम यहां पे आके 01 नैपसैक में क्या करते थे, एक साइज से डिक्रीज कर देते थे कि अब हमने इसको इंक्लूड कर दिया, तो ठीक है, इंक्लूड कर चुके। बट हुआ क्या, हमने अनबाउंडेड नैपसैक में एक आइटम को इंक्लूड किया, तो अब क्या ये आइटम हमारा हम दोबारा इंक्लूड नहीं कर सकते,
दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ अनबाउंडेड नैपसैक, ठीक है। हमने इस आइटम को कंसीडर किया, ठीक है, इस आइटम को कंसीडर किया कि हम इसको अपने नैपसैक में डाल सकते हैं। नीचे है, हमने चेक किया कि हम इस आइटम को अपने नैपसैक में डाल दिया, ठीक है, हमने इसको कंसीडर कर लिया एक बार आंसर में। तो क्या आप दोबारा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन रिकंसीडर दिस आइटम। तो इस केस में हमें करना क्या है, इस केस में जो हम साइज ऑफ इज इक्वल्स टू साइज -1 कर देते थे, दैट इज वी डोंट नीड टू कंसीडर दिस आइटम अगेन इन 0 1 नैपसैक। उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, ये साइज इज इक्वल्स टू साइज -1 नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी कैन रिकंसीडर दिस आइटम अगेन एंड दिस इज द मेन चेंज इन अनबाउंडेड नैपसैक। इसके अलावा हमें और कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है। तो इफ आई राइट अनबाउंडेड नैपसैक कोड, ठीक है, सॉरी, अगर मैं रिकर्जन का कोड लिखूं अनबाउंडेड नैपसैक के, ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान में मत देना, मैं रफ कोड लिखता हूं, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे। तो पहली चीज हमारे पास क्या आती थी, लिमिट कैपिटल W, देन आता था हमारे पास वेट, ठीक है, WI यू कैन से, देन वैल्यू एंड देन तुम्हारे नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। रिकर्जन का बेस केस हम क्या लिखते थे, इफ तुम्हारा कैपिटल W 0 है या फिर और तुम्हारा जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो 0 है, तो तुम्हें सिंपली 0 दे देना था, ठीक है। सेकंड, हम अपना डिसीजन ट्री में नीचे बढ़ते थे। अगर हम किसी आइटम को हमने सोच लिया कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सक्लूड कर सकते हैं, हम उसको इंक्लूड कर ही नहीं सकते, वो केस कौन सा था, जब उसका WI होता क्या था, ग्रेटर देन जो हमारी अवेलेबल लिमिट है बैग में। इस केस में हमें सिंपली क्या करना था, इस आइटम को एक्सक्लूड करना था। तो हम इस केस में रिकर्जन क्या कॉल करते थे, रिकर्जन फंक्शन। लिमिट हमारी सेम रहेगी क्योंकि डिक्रीज नहीं हुई, W एरे भी सेम रहेगी, V एरे भी सेम रहेगी, ठीक है, और मैंने W को इस तरह बना दिया तो कंफ्यूज मत होना है। और साइज हम यहाँ पे डिक्रीज कर देते थे क्योंकि ऑब्वियसली अब हम इस आइटम को रिकंसीडर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम इसको ले इंक्लूड ही नहीं कर सकते। एल्स केस में जब हम किसी आइटम को इंक्लूड कर सकते हैं, उस केस में हम क्या करते थे, दोनों पॉसिबिलिटीज का मैक्सिमम लेते थे। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। दोनों पॉसिबिलिटीज का मैक्सिमम। फर्स्ट केस हमारा क्या था, जब हम इंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन इंक्लूड, दो केस थे हमारे पास, ठीक है। यस, हम इंक्लूड कर रहे हैं, जब हम इंक्लूड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे में जुड़ जाएगी, है ना, वैल्यू ऑफ आई हमारे में जुड़ जाएगी, प्लस बाकी के लिए हम दोबारा चेक कर लेंगे। लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट W ऑफ आई से डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली, जो करंट आइटम का वेट है, ठीक है। एरे सेम रहेगी, V सेम रहेगी, बट एक चीज क्या हुई हमारी यहाँ पे, इस आइटम को हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, ओके, तो दैट्स वाई n-1। और जब हम इस आइटम को कंसीडर कर सकते हैं बट हमने किया नहीं, उस केस में हमें सिंपली क्या करना है, रिकर्जन, कैपिटल W सेम रहेगा क्योंकि लिमिट हमारी डिक्रीज होगी नहीं, ये एरे भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा, और ये इस आइटम को हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, फाइन। ये हमारा 0 1 नैपसैक का कोड। इस नैपसैक के कोड में तुम खुद बताओ कि मैंने सिंपली क्या चेंज किया था। वो वाला केस जब हम किसी आइटम को इंक्लूड कर सकते हैं और कर रहे हैं, बट उस केस में हमारा जो रिकंसिडरेशन वाला चार्ज है वो डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है, दैट इज साइज डिक्रीज नहीं होगा। तो वो कौन सा केस है, ये वाला केस है, जब हम किसी आइटम को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और किया, हमने इसको इंक्लूड कर लिया अपने नैपसैक में, बट क्या उस केस में उसको दोबारा रिकंसीडर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या कर दो, n की जगह n-1 की जगह n कर दो, दैट वी कैन रिकंसीडर दिस आइटम इन नैपसैक एंड दिस इज रिकर्जन कोड ऑफ अनबाउंडेड नैपसैक, ठीक है। तो इतना सिंपल सा चेंज था अनबाउंडेड नैपसैक में। अब दूसरी चीज क्या कि इसको अगर मैं डीपी का मेमोराइजेशन करना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डीपी ऑफ क्या करता था, नंबर ऑफ आइटम्स +1 क्योंकि इंडेक्सिंग की वजह से, और ये चीज मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं तो ऑब्वियसली यू नो कि मैं इसको दोबारा नहीं बताने वाला, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते थे कि करंट वैल्यू हमारे पास डीपी की है या नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि करंट वैल्यू डीपी की है या नहीं। और सेम चीज तुम्हें करनी है, तुम्हें ये वही सेम चीज जैसे तुम पहले करते आए हो, तो मेमोराइजेशन का कोड लिख लो इसका, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है, फाइन। तो मेमोराइजेशन का आई होप कोड लिख लोगे। सेकेंड चीज हमें इस क्वेश्चन में क्या देखनी थी, अनबाउंडेड नैपसैक बाय लीनियर स्पेस।
अब होता क्या था, यहां तक देखो कि जो डीपी एरे हम स्टोर करने के लिए यूज करते थे, है ना, वो क्या करते थे, नंबर ऑफ आइटम्स और लिमिट ऑफ नैपसैक। ऐसा हम क्यों करते थे? मेन रीजन वाज दैट कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है, जो हमारी मैक्सिमम आंसर वैल्यू थी वो किस पे डिपेंड करती थी? चेंजिंग वेरिएबल्स, चेंजिंग वेरिएबल्स में, ठीक है ना। नाउ तुम अनबाउंडेड नैपसैक में देखोगे, अनबाउंडेड नैपसैक में आओ और इसमें बताओ कि तुम्हारी अभी भी क्या ये दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स और तुम्हारा जो लिमिट है, लिमिट ऑफ बैग, दैट इज लिमिट ऑफ नैपसैक। तो तुम क्या कहोगे कि मेरे नंबर ऑफ आइटम्स तो चेंज हो ही नहीं रहे। हाउ? सपोज मैंने ith आइटम को अभी रिकंसीडर कर लिया था, ith आइटम को अपने बैग में, तो क्या अब ये आइटम मेरे नंबर ऑफ आइटम से हट गया? नहीं हटा ना, इट इज स्टिल हेयर। मैं इसको रिकंसीडर कर सकता हूं। इट मींस नंबर ऑफ आइटम्स इज कांस्टेंट ड्यूरिंग होल अनबाउंडेड नैपसैक प्रोसीजर। तो दैट्स व्हाई हम ये जो स्टेट है, दैट इज n+1 वाली, नंबर ऑफ आइटम्स वाली, वी कैन ये वेस्ट है, ठीक है, यू कैन से दैट दिस थिंग इज वेस्ट, हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये तुम्हारा नॉन चेंजिंग वेरिएबल है, क्योंकि ये कभी चेंज होगा ही नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं सिंपली लिखूं कि लीनियर डीपी में क्या कर सकते हैं, तो डीपी ऑफ w+1 बनेगी हमारी, ठीक है, जहां पे तुम्हारी डीपी ऑफ आई क्या देगी तुम्हें? डीपी ऑफ आई देगी कि अगर तुम्हारा कोई बैग है, दैट यू हैव बैग ऑफ ith कैपेसिटी, ठीक है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वेट यू कैन पुट इनटू इट, मैक्सिमम वैल्यू वेट, ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू वेट यू कैन पुट इनटू इट, दैट डीपी ऑफ आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। और सिंपली तुम्हारा आंसर किस में आएगा, तुम्हारा जो मेन बैग है उसकी लिमिट क्या है, डीपी ऑफ डब्ल्यू में तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, कि तुम्हारे बैग का वेट क्या है, डब्ल्यू, तो डीपी ऑफ डब्ल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि बैग विथ डब्ल्यू वेट कैपेसिटी विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम वैल्यू वेट आइटम्स जो तुम डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका कोड दिखा देता हूं तुम्हें, सिंपली लीनियर स्पेस वाला, वो ये रहा, ठीक है, लेट मी जस्ट डू दिस, फाइन। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एक लीनियर डीपी की एरे ले ली, ठीक है, और ऊपर मेरे पास सेम चीज है, नंबर ऑफ आइटम्स, लिमिट, मेरे बैग की वैल्यू एरे और वेट एरे, ठीक है। मैंने पूरे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया कि इनिशियली सब वैल्यूज 0 थी, ठीक है, मेरा बैग एम्प्टी था, यू कैन से। फिर मुझे ऑब्वियसली क्या मैं अपडेट करूंगा एक बार में, सबसे पहली चीज तुम्हें क्या देखनी होती है, ठीक है, तुम डीपी ऑफ w+1 बना रहे हो, ठीक है, तो तुम छोटे से बड़े की तरफ चलोगे, और यही हम डीपी में या रिकर्जन में करते थे, ठीक है। हम i = 0 के लिए निकालते थे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम w बिल्ड करते थे। तो ये हो गई बॉटम अपर अप्रोच, ठीक है। अगर तुम बड़े से छोटे की तरफ तरोगे तो तुम कह सकते हो कि ये टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, जैसे इस सॉल्यूशन में हम 0 से बिल्ड कर रहे हैं सॉल्यूशन अपने आंसर वैल्यू के लिए, ठीक है, तो ये बॉटम अप अप्रोच तुम कह सकते हो, ठीक है, फाइन। अब तुम करंट वैल्यू i के लिए, दैट इज तुम्हारे बैग की कैपेसिटी जो है i है, ठीक है, करंट, तुम उसके लिए निकाल रहे हो कि तुम सारे के सारे आइटम्स यूज करके कितना मैक्सिमम वेट बना सकते हो। तो तुमने करंट वैल्यू i के लिए तुमने सारे आइटम्स में इटरेट किया, नंबर ऑफ आइटम्स में, फिर तुमने करंट आइटम चेक किया कि क्या वो तुम्हारे बैग में जा सकता है। हाँ, अगर जा सकता है तो यू विल अपडेट डीपी ऑफ आई एज मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई, तुम्हारी वैल्यू जो इनिशियली रही होगी, ठीक है, जो अभी तक तुमने पिछले आइटम्स को कंसीडर करके जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, ठीक है, या फिर तुम करंट आइटम को भी अपने नैपसैक में डालो, तो तुम्हारा वेट कितना हो जाएगा, तुम्हारी वैल्यू उस डीपी ऑफ आई में ऐड हो जाएगी। पहली बात तो तुमने करंट आइटम डाल दिया, ठीक है, प्लस तुम उसमें क्या करोगे, डीपी ऑफ आई माइनस WTJ। तुमने ऐसा क्यों किया, सपोज तुम करंट बोल रहे हो कि तुमने क्या बोला कि मैंने करंट आइटम दैट इज V ऑफ J मैंने अपने बैग में डाला, ठीक है,
तो इनिशियल वैल्यू उसकी क्या रही होगी, दैट विल बी डीपी ऑफ आई माइनस वेट ऑफ जेथ आइटम। वाई, इनिशियल वैल्यू जब उसकी आई माइनस वेट ऑफ जे रही होगी, ठीक है, तुम उसमें वी ऑफ जे डालोगे, तभी तो वो क्या बनेगा, डीपी ऑफ आई। तो तुम्हें बस इतनी सी चीज थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि डीपी मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी, इनिशियल तुम्हारा बैग जो होगा उसका जब वेट आई माइनस वेट ऑफ जेथ आइटम होगा, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें क्या होगा, सिंपली करंट आइटम की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर इस चीज में कोई भी डाउट है, यू कैन अगेन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और हमारे मेन आंसर क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ डब्ल्यू, कि हमारा जो बैग है उसकी कैपेसिटी डब्ल्यू है और हम उसमें कितना मैक्सिमम वेट पुट कर सकते हैं। So thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can just ask me in comment section and I will explain. And again, if you haven't visited Newton School, just go and check their pay after placement program, Launchpad initiative. And for MS degree program, you can just go to the link in description, bit.ly hitesh15. Now, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this. Again, refer this channel to your siblings and to your friends, whoever wants to learn DSA or dynamic programming or any programming language or JavaScript. Thank you guys for watching.